Charles' law. Charles' law is the TV relationship. At constant pressure, the volume of a fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature at constant pressure. This you should remember. So V is directly proportional to T in Kelvin at constant pressure. When we cool a gas, volume decreases and vice versa. When you decrease the temperature of a gas, its volume decreases, and if you increase the temperature, its volume increases. Real gases obey Charles' law at low pressure and high temperature. For 1 degree rise in temperature, the volume of gas increases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree Celsius. See, Charles' law is only valid for when the temperature is in Kelvin. ठीक है, तो अगर तुम सेल्सियस में 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करोगे तो 1 by 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस के फैक्टर से वो इंक्रीज होगी. ठीक है, तो V0 by 273 plus, okay, let's see, 1 degree rise in the volume of gas increases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree Celsius. So let volume at 0 degree Celsius be V0, let volume at T degree Celsius जो अभी तुम्हारी है वो है VT. So VT equals V0, ठीक है, प्लस T डिवाइडेड बाई 273.15, ठीक है, T by 273 into V0. So basically for 1 degree rise in temperature, the volume of gas increases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree Celsius. Okay, so let volume at 0 degree Celsius be V0, let volume of at T degree Celsius be VT. So VT equals V0 plus T by 273 into V0. ठीक है, VT equals V0 plus T by 273 into V0, or you could also write it as increases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree Celsius, and also you could write it as V0 by 273 into T. ठीक है, I think it would be better if you wrote it as V0 by 273 into T, because the volume of gas increases by 1 by 273 of its original volume at 0 degree Celsius. VT equals V0 plus T by 273 into V0. So VT equals V0 into 1 plus T by 273 is equal to V0 into 273 plus T divided by 273. Proof of Charles' law. 0 degree Celsius is equal to 273.15 Kelvin. ठीक है, T in Kelvin is equal to 273 plus T in Celsius. Okay, so putting T in Kelvin, converting Kelvin to degree Celsius, so we can use in equation of C. तो अगर तुम टेम्परेचर ऑफ केल्विन को तुम लिख सकते हो 273 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एंड T0 इन केल्विन इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस इन इक्वेशन. तो VT को तुम लिखोगे, ठीक है, तो तुम T की जगह, ये जो T है इसकी जगह तुम 273 प्लस T लिखोगे, एंड जो T0 है उसकी जगह तुम 273 लिखोगे. तो VT is equal to V0, okay, volume at 0 degree Celsius. This is a different story. ये volumes हैं, volume at 0 T into V0, volume at 0 degree Celsius into divide by 273 तो करना ही है, given as T0 C. तो यहाँ पे 273 प्लस T, दिस इज योर TT. ठीक है, जो तुम्हारा ये T था ऊपर वाला, that is basically 273 plus T, okay, and divided by 273. तो ये इन्होंने इक्वेशन बनाई थी ना, VT is equal to V0 into 273 plus T upon 273. यही सेम चीज़ यहाँ पे है, बेसिकली तुम केल्विन में कर रहे हो. ठीक है, ये पूरा का पूरा केल्विन में ही है, क्योंकि दिस होल थिंग हैज़ बिन कन्वर्टेड फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, सो यू डूइंग दैट थिंग योर. तो VT अपॉन V0 इज इक्वल टू TT upon T0. Okay, this is quite an interesting thing. तुमने जो है टेम्परेचर इन केल्विन, तुमने सेल्सियस की इक्वेशन से ही हमने केल्विन वाला प्रोपोर्शनैलिटी ये डिराइव की थी. ठीक है, तो तुम्हें अगर सेल्सियस की इक्वेशन पता चल गई थी कि VT इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273 इंटू V0, तो V0 कॉमन लिया तो 1 प्लस T बाई 273, फिर 273 प्लस T बाई 273, ये तुम्हारी इक्वेशन आई. अब इस इक्वेशन, ये सेल्सियस की इक्वेशन है, अब तुम्हें इसे केल्विन की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें पता है कि T इज़ वॉट, T इन केल्विन इज़ 273 प्लस T. ओके, सो
in place of T you can just write 273 plus T अपॉन 0 डिग्री सेल्सियस इज ऑब्वियसली 273, तो वो ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी को डिराइव किया. अंडरस्टूड माई पॉइंट? ठीक है. ओके, सो दिस जनरल इक्वेशन इज, दस जो जनरल इक्वेशन है दैट इज बेसिकली v अपॉन t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, v by t is equal to constant, hence v is directly proportional to t and v is equal to kt. ठीक है, ये हमें एक मिल जाता है. चार्ल्स लॉ का जो प्रूफ है वो भी था एक, वो मैं अच्छे से बता दूंगी, और दूसरा जो मेरा थर्मल एनर्जी का क्वेश्चन था वो भी मैं अच्छे से बता दूंगी. ठीक है, तो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, therefore v1 अपॉन t1 is equal to v2 upon t2, hence v by t is equal to constant, so v is directly proportional to t. ये समझ आ गया. अब इसका ग्राफ देख लो. ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है. ईच लाइन इज कॉल्ड एन आइसोबार बिकॉज ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइंस है ना, तो हर लाइन को हम बोलते हैं आइसोबार. ओके, सो दिस लाइन इज फॉर p1, ओके, एंड दिस इज फॉर p2. ये दो लाइन्स आई है तुम्हारी, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना. ये इन डिग्री सेल्सियस है तो दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सी, विथ टेम्परेचर राइज वॉल्यूम विल इंक्रीज. तुम 0 डिग्री सेल्सियस में राइज करो, तुम डिग्री सेल्सियस में राइज करो या तुम केल्विन में राइज करो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. बट केल्विन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पे वो प्रोपोर्शनैलिटी नहीं आएगी, बट वो इंक्रीज तो होगा ही सही. तो वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय के की वैल्यू हम डिटरमाइन करते हैं प्रेशर ऑफ गैस से, अमाउंट ऑफ गैस से, और वॉल्यूम के यूनिट से. नाउ हियर v इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. एज यू कैन सी ग्राफ डजंट पास थ्रू ओरिजिन. इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन बट डजंट पास थ्रू ओरिजिन, हेंस नॉट प्रोपोर्शनल. वरना तो सारी स्ट्रेट लाइन्स प्रोपोर्शनल होती. इसको ना अगर ये ओरिजिन से पास करता है सिर्फ तभी ये प्रोपोर्शनैलिटी ग्राफ है, वरना ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो एट 273.15 डिग्री सेल्सियस वी कैन सी दैट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट जीरो. वॉल्यूम जो जीरो है वो इधर आएगी, विच इज़ अबाउट -273.15 डिग्री सेल्सियस. इतने लो टेम्परेचर पे तुम्हारी वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट जीरो जाएगी. वी कैन से दैट एट दिस पॉइंट गैस विल नॉट एग्जिस्ट. ओके, एज ऑल गैसेज गेट ऑलमोस्ट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर, इट इज़ hypothetical temperature at which all gases occupying zero volume and is called absolute zero. इस पे क्या है, सारी gases अगर इस temperature तक तुमने cool down कर लिया तो all gases will occupy zero volume and this temperature will be called your, what will it be called, your absolute zero, because इस point पे सारी की सारी gases जो है they are occupying zero volume. Okay, so this is your absolute zero, which is not even possible to bring in laboratories, and I don't think it exists anywhere in the universe. It's the coldest possible temperature because at this temperature तुम्हारी gases भी exist नहीं करती हैं, और इससे पहले वो liquefy हो जाती हैं, but इस temperature तक पहुंचा दिया तुमने अगर, और वो तो exist ही नहीं करेगी. It'll have zero volume. Okay. Temperature increase equals volume increase for all scales, but directly proportional only for Kelvin. सारे स्केल्स में ऐसे हम नहीं बोल सकते ना कि अगर तुमने डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं और वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, हम ये नहीं देखते कि हमने डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज़ किया या केल्विन में इंक्रीज़ किया, और जिसमें भी इंक्रीज़ किया हम दोनों यूनिट्स का कह सकते हैं, है ना. तो टेम्परेचर राइज इज डायरेक्टली इज ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑल्सो राइजेस, बट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली फॉर केल्विन. चार्ल्स लॉ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक डेरिवेशन आती है इसकी, और इसमें ये ग्राफ आता है. ध्यान, दरवाज़ा बंद कर. इसमें डेरिवेशन आती है, इसमें जो है ग्राफ्स आते हैं जिससे तुम पता करते हो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो कौन सा है, राइट. सो आई हैव, ओके, यस, देन वी हैव Gay-Lussac's law and Avogadro's law and an ideal gas equation. Just give me 2 minutes.